Alright guys, हम लोग एक तो हमारा जो लास्ट कपल ऑफ क्लासेस के अंदर हमने जो कवर किया है वो स्टेशनरी पॉइंट, नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, फिर ग्रेडियंट, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये वाली चीज़ें कवर किया। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हम मेनली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेट्स ऑफ चेंज, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे पास पूछा जाता है। Rates of change, whenever we talk about rate, it is change with respect to time. It could be rate of change of volume. That would mean dv by dt. It could be, so I'll just write that. It's a rate of change of volume. If it's rate of change of area, then it's dA by dt. Rate of change of area. So rate is with respect to time. अच्छा, इसमें एक sort of, अब ये और बहुत सारे rates of change हो सकते हैं. Length can change with time. A point's x value can change with time. A point's y value can change with time. A horse moving along a circle may, have an arc length which is changing with time, ds by dt. The angle made as something swings around a circle changes with time. That could be d theta by dt. Temperature can change with time, dt by dt. So capital. So rate of change is with respect to time. अब हमारे पास जनरली अगर हमें कहा जाता है कि जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, विच मीन्स कि आपके पास एक पैराबोला है और वो पैराबोला जो है, फॉर एग्जांपल, oops, फॉर एग्जांपल ये पैराबोला इस तरीके का है. So there's a point on this parabola. So इसको हम कर देते हैं x minus 2 whole squared. So इसके ऊपर एक पॉइंट है, वो मूव कर रहा है. कैसे? हम कहते हैं x is changing at a rate of 2 units. So x is increasing at a rate of 2 units. You should say that what that means is dx by dt is 2. So the above is the statement that Cambridge would give. Below is the expression you will be able to extract. Dx by dt is equal to 2. So x is increasing at a rate of 2 units. Dx by dt is equal to 2. फिर आपसे वो पूछ सकता है और कह सकता है कि दैट y is equal to x minus 2 square is the equation of the curve in which x is changing at a rate of 2 units. They can say find the rate at which y is changing when x equals, maybe they say when x is 5. They might say that. So the small link or relationship you need to find first is you need to find a chain. The chain or the link in the variables. आपके पास 3 variables हैं जिसमें एक variable time है. Time always goes here. Time will always be the last relationship, rate wala. Y will be your main variable, main item. Like what's the main item? Like volume, like area, like length, those are your main things.
मेन वेरिएबल यहां पे y, इट्स डिपेंडेंट ऑन x. So y is the main variable. It depends on x, and x changes with time. X changes with time. Therefore, y also changes with time. That's the link formed. Okay, x changes with time and so does y. So हम एक छोटा सा लिंक क्रिएट करते हैं. We say dy by dx. That's the first link. अगर उसके चेंज को dx by dt, rate of change of x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, we end up getting dy by dt. ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ जाती है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसी इक्वेशन के अंदर आपने सेट प्लग इन करनी है वैल्यूज. So that's what you got to do, plug in values. So dy by dx सिंपल है. जो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा उसको आपने डिफरेंशिएट करना है. टू नीचे आया, पावर कम हुई और इनर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया. सो टू इंटू एक्स माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह चला गया. dx by dt की जगह उन्होंने 2 दिया हुआ है. यू प्लग दैट इन. दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर dy by dt. अब इसमें स्पेसिफिक्स पूछे गए हैं कि व्हेन x इज 5, x की वैल्यू 5 है तो y किस रेट से चेंज हो रहा है. अब नोट करो, x की वैल्यू चेंज होगी तो dy by dt का एक्सप्रेशन भी डिफरेंट आएगा. सो x की जगह यू प्लग्ड इन 5. And when you did that, you got 3 times 4, which is 12. So your dy by dt rate at which y changes is 12 units per second or per jo bhi rate diya hua hai. Do you guys understand that? Yes, I will. Horse to chalega. What is the x in dx? X in dx. इसके अंदर कह रही हो सबेना, which x are we talking about? Question. That was sir, वही वाला dx वाला. कौन सा वाला? जो सर आपने अभी दिखाया है. ये जो मैंने, ये वाला अभी, ये जो येलो में लिखा था. ऑलराइट, ये जो x है ये इसका, इस कर्व में ना का कोई भी पॉइंट है x, y, और सब है ना इस x एक्सिस पे ना x की वैल्यू इस एज द पॉइंट मूव्स तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. तो इसका जो x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना वो 2 यूनिट्स पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाट dx मींस, चेंज इन x विद टाइम. सो 2 यूनिट्स पर टाइम, per whatever time. Does that make sense, Sabina? Yes sir. All right. अच्छा, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक रिलेशन बनाना है y का x के साथ t. अब मैं एक रैंडम बताता हूं कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है. अब कोनिकल फ्लास्क जो है उसमें से उसके अंदर पानी आपने, बल्कि सिलेंड्रिकल कर देते, कोनिकल को छोड़ो. सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आप पानी पोर कर रहे हो एट अ रेट. तो एक पाइप लगाया हुआ है, उससे पानी अंदर फ्लो कर रहा है. लेट्स से पानी फ्लो कर रहा है जी 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से. ठीक है. और जैसे जैसे पानी इस कंटेनर में जा रहा है, इस कंटेनर का जो डेप्थ ऑफ वाटर है ना वो इंक्रीज कर रहा है. लेट्स से द डेप्थ ऑफ द वाटर इज h. ठीक है. और रेडियस ऑफ दिस कंटेनर फिक्स कर देते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेनर है, इसका कोई रेडियस फिक्स्ड होगा. लेट्स से द कंटेनर्स रेडियस इज 100. ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स.
So volume of this cylinder is pi r square h. पाई रेडियस हो गया आपके पास 100, वो तो फिक्स्ड है। एच जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड दिस कंटेनर विल बी द हाइट ऑफ द वाटर। वो जैसे जैसे बढ़ेगा वो कंटेनर की शेप लेता जाएगा और वही वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगा डी वी बाय। और उसका जो चेंज होगा, वॉल्यूम विल चेंज विद हाइट, तो हम उसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज चेंजिंग विद हाइट एंड हाइट इज चेंजिंग विद टाइम। So we can then say dv by dh, पहली लिंक है, मल्टीप्लाइड बाय dh बाय dt, दूसरी लिंक है, इज इक्वल टू dv बाय dt। ये आपके पास रिलेशन है वॉल्यूम का विद टाइम, dv बाय dt। एक तरह से dh कट रहा है और dv बाय dt आ रहा है। सो बट द लिंक इज, हाउ डज द वॉल्यूम चेंज विद हाइट? The rate at which it does multiplied by dh by dt, the rate at which height changes, multiply करो तो we get the rate at which the volume is changing, dv by dt. So ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, dv by dh, इसकी पावर 1 है, तो आपके पास 100 स्क्वायर्ड इंटू पाई dv बाई डी की वैल्यू होगी। वो आप इसकी जगह प्लग इन कर दोगे, 100 स्क्वायर्ड इंटू पाई, और dh बाई dt जो है रेट एट विच द हाइट चेंजेस, ये लेट से निकालना है। और dv बाई dt हमें पता था 50 है, 50 गोज हियर, ये उधर जाके डिवाइड होगा, dh बाई dt आपके पास आ जाएगा। तो एक हल्का सा ये एक एग्जाम्पल था। शेप्स कैन बी डिफरेंट, expressions can be different. Yes, let's move to the questions. ओके रेहान शोएब, मैं तुम्हें dv बाई डी की बात बता देता हूँ। वॉल्यूम का जो इक्वेशन है वो है 100 स्क्वायर्ड इंटू पाई इंटू एच। तो वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन एच। ये ऐसे ही है जैसे कि y इज इक्वल टू 10x हो, तो dy बाई dx करते हो तो आंसर 10 आता है ना, क्योंकि x की पावर 1 होती है तो नीचे इसी तरह h की पावर 1 है, 1 नीचे आएगा, कम हो जाएगा तो ये नंबर रह जाता है पीछे का। dv बाई dh इज जस्ट दैट नंबर। ठीक है, ये dv बाई dh की वैल्यू आ जाती है। डज दैट मेक सेंस रेहान? जी, उसको डेरिवेट किया है। ठीक हो गया, गुड। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। So here's a question from the worksheet that I've shared. Question number 1, ये मैं एक दो questions सारे खुद करता हूँ। You guys will get the hang of it, especially those जो पहली पहली दफा देख रहे हैं। A curve has equation y is equal to x square minus 2x minus 3. A point is moving along the curve. So एक point है, वो इस curve के along move कर रहा है in such a way that at p, P जो है पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 यूनिट्स पर सेकेंड। तो भाई आप फटाफट लिख लो, रेट है y का है dy बाई dt, 4 लिख लो, एंड द x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 6। फिर आप लिख लो जी dx बाई dt इज इक्वल टू 6। अभी मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप y का x की टर्म्स में है, y इज बेस्ड ऑन द वेरिएबल x, और सब कुछ टाइम की बेस पे चेंज हो रहा है, x भी। सो dy by dx into dx by dt gives you dy by dt. So you will say dy by dx into dx by dt is equal to dy by dt। dy by dt की जगह आप प्लग इन कर दोगे 4, dx by dt की जगह आप प्लग कर दोगे 6। dy by dx इज वेरी सिंपल, 2x minus 2, और
इसको एक्सपैंड सिंप्लीफाई करो, 12x माइनस 12 इक्वल्स 4, 12x इक्वल्स 16, x की वैल्यू 16/12 which is 4/3। तो x की वैल्यू आ गई, यही चाहिए था, 4 मार्क्स मिल गए। सो बेसिकली ये बड़ा ही आसान किस्म का सवाल था, जिसके अंदर आई होप कोई मसला नहीं है। लेट्स सी इफ देयर इज, ठीक हो गया। ऑलराइट, कोई इसमें खास इशू नहीं है। लेट्स सी कि कोई अच्छा सवाल कर लें। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट्स हैं। इतना जूम्ड आउट ठीक है गाइस, कोई मसला तो नहीं है? नजर आ रहा है इजीली? नो इशू आई होप। ठीक है अहमद, इसके बाद वो दूसरा वाला के वाला क्वेश्चन कर लेंगे जो तुम कह रहे हो। क्योंकि ये इजी सा टॉपिक है, इसकी रिकॉर्डिंग एंड करके उसकी अलग रिकॉर्डिंग करके, ताकि वो जरा ऑफ टॉपिक है ना। A point P is moving along a curve in such a way that the x coordinate of P is increasing at a constant rate of 2 units per minute. So dx by dt is 2. The equation of the curve is given. Find the rate at which the y coordinate dy by dt कह रहे हैं निकालो जब x की वैल्यू 1 है। तो तुम सबको मालूम है dy बाय, जूम इन करूं, तुम सबको मालूम है कि dy by dx into dx by dt is equal to dy by dt। अब इसका dy by dx क्या है? dy by dx, y is 5x minus 1 raised to the power half। हाफ नीचे आएगा, पावर रिड्यूस होगी बाय 1, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हैपन्स टू बी द इनर डेरिवेटिव, 5x माइनस 1 की वजह से 5 आया है। सो आपके पास आ गया 5/2, 5x माइनस 1 रेज टू द पावर नेगेटिव हाफ। कल हमने फातिमा की बात सुनी थी, आज भी सुनते हैं, पता नहीं इधर है आज की नहीं। x की वैल्यू 1 डाल देते हैं और फॉर्मूले में, मतलब कैलकुलेटर में डाल दो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो वो आप इसमें प्लग इन कर दोगे। सो 1 डाला, 4, 5 माइनस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, लेकिन नेगेटिव हाफ था तो नीचे चला गया 2, तो 5/4। If I am mistaken, calculator should return you 5/4। dx by dt was given as 2। इससे आपको dy by dt मिल गया। फिर आगे हम, alright Faris, so will the questions be like this in the midterm or will it be less? Faris, this one's not coming on the mid. I didn't give it in your mid. Yeah, ठीक है। -5/4 +5/4 +5/4 यहाँ शोएब, +5/4। ओके, इतना मुश्किल नहीं है फारिस, इट्स नॉट दैट बैड। इसका आंसर, हाँ जी, इसका आंसर is 5/2। That's the answer. dy by dt is 5/2। Please confirm. G. And then comes the next part. Next part says, find the value of y of x when y coordinate is increasing at 5/8. Excuse me. Let's throw this question back इधर।
ओके, ये हमारे पास इधर गया सवाल। okay. अच्छा जी, ये देखें जी क्वेश्चन को। ये चीजें मैं गायब कर देता हूँ। All right. So find the value of x when the y coordinate is increasing at 5/8. तो y coordinate is increasing का मतलब है dy by dt. So dy by dt 5/8 आ गया। dx by dt घबराना नहीं है, dx by dt इज ऑलरेडी गिवन, वो 2 दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर ए के पार्ट से पहले वाली इंफॉर्मेशन है। तो वही इंफॉर्मेशन जो है अब पार्ट बी में भी इंसर्ट हो रही है। सो यू आर गोइंग टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। बाकी जहां तक dy बाई डी एक्स की एक्सप्रेशन की बात है, वो आप इधर इंसर्ट कर दोगे और यू विल सॉल्व फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स, या अननोन एक्स के लिए आप सॉल्व करोगे। सो मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूं। 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 काट दिया, 5 और 5 अक्रॉस काट दिया, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। √5x - 1 = 1 हो गया, उस साइड पे ये उधर चला गया। सो बेसिकली यू जस्ट प्ले अराउंड, डू योर अलजेब्रा थिंग एंड स्क्वायर करके आपने x की वैल्यू फिगर आउट कर ली। सो x की वैल्यू कम्स आउट as 65/5, which I believe is 15. So no, it's not 15, it is 13. So आपके पास x की वैल्यू आ गई। Is that clear to all? जी हाँ, सबसे पहले आपने हाँ जी, yes. Okay, so I will maybe do one more of this rate of change question. And it's a question, and then we can do some other questions. 3 marks, 3 और 3, 6 marks. ये कोई तरह मुश्किल नहीं है। All right. Yeah, so this one, सिर्फ थ्योरेटिकली इसको कर लेते हैं, पूरा करने की अभी फिलहाल मतलब क्या ही करें। इसमें कहता है फंक्शन इज डिफाइंड पावर -2 दिए हुए है। A point is moving along the curve in such a way that it passes through point A and its y coordinate is decreasing at a rate of k. मतलब dy by dt is equal to -k. X is increasing, dx by dt is positive k. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ये ए वो खास पॉइंट है जिस पे ये काम हो रहा है। सो आपको मालूम है रिलेशनशिप dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, ये अब मैंने डी एक्स काटना था, इसलिए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। या आप वो वाला रिलेशनशिप याद रखोगे, वाई एक्स देता है, एक्स टी देता है, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी देता है। सो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी एक्स बाई डी टी की जगह आप नेगेटिव पॉजिटिव के लिखोगे, डी वाई बाई डी टी की जगह नेगेटिव के लिखोगे, और ये जो भी आपका डी वाई बाई डी एक्स आपने लिखा होगा, तो ये के और के कट जाएगा, तो इस साइड पे -1 बन जाएगा। एंड देन यू विल सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकली किया है पूरा, खुद आप इसको कंप्लीट कर लेना। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट को वापस आप ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स चाहिए इनको ना, पॉइंट ए के, एक्स एंड वाई बोथ। एनी कंफ्यूजन इन दिस यू कैन आस्क any. Hello, Ali is here, that's very nice. Ali, good to see you. I hope you were here on time and you have been understanding stuff. Sabina, any confusions? No, sir.
गुड सीन हो गया ये तो सबेना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सबेना, ये वाला क्वेश्चन करके फिर देन विल डू सम अदर क्वेश्चंस, ठीक है? ये लास्ट रेट्स ऑफ चेंज का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन करने का मकसद एक तो ये है कि इसमें यूनिट्स की कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? A large industrial water tank is such that when the depth of the water in the tank is x meters, the volume V in the tank is given. ये V volume है. Water is being pumped into the tank at a constant rate of 3.6 meter cube per hour. सो दैट्स dv बाय dt। जब भी रेट होगा अली, तो इट विल जस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट बोल दे, तुमने नीचे ये t रखना है, dt। फिर तुमने क्वेश्चन में दिया हुआ है v इज इन टर्म्स ऑफ x, तुमने कहना अच्छा जी v है x की टर्म्स में, एंड में तो आता ही t है, तुमने लिखना dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज dv बाई डी टी। ये तुम्हारा पहली जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं कर सकते। dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज dv बाई डी टी। ये सेटअप कर लिया। dv बाई डी एक्स को इतना मसला नहीं है, v इज 243, और 243 का तुम्हें पता है जीरो हो जाता है, और ये जो पावर रूल लगेगा, 3 नीचे आएगा, 1/3, 9 माइनस एक्स, 3 से एक पावर कम होगी, 2 हो जाएगा, और अंदर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंदर का जो डेरिवेटिव है वो -1 है। 9 माइनस एक्स का, 9 का 0 होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है। 3 और 3 कट गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया 9 माइनस एक्स का स्क्वायर्ड, दैट्स dv बाई डी एक्स। तो ये तुमने यहां पे लिख दिया 9 माइनस एक्स का स्क्वायर्ड इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही तो नहीं पता, और dv बाई डी टी पता है 3.6। उसने कहा है 4 मीटर जब हो तो तब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डेप्थ निकालो। एक्स जो था वो डेप्थ था, तो एक्स की जगह तुमने 4 प्लग इन किया। अब कन्फ अब 5 मार्क्स क्यों है ये? अगर स्टैंडर्ड हम बात करें तो इतने के हमें कम मार्क्स मिलते थे, ये एक एक्स्ट्रा मार्क क्यों इन्होंने डाला हुआ है? तो वो जो एक्स्ट्रा मार्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो इस हल्की सी ट्रिक के ऊपर किया है कि उन्होंने सेंटीमीटर पर मिनट। आपको यूजुअली हम आदि होते हैं एग्जाम में, पढ़ा 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 यहाँ तक पढ़ा, बस चलो सवाल। ये जो सेंटीमीटर पर मिनट है ना, ये हमारी आंखों से मिस हो जाता है। ये था पर आवर, और वो भी मीटर क्यूब पर आवर, ये सेंटीमीटर पर मिनट है। मतलब मैंने भी जब पहले दफा पढ़ा था तो मैंने भी नहीं देखा था कि भाई ये क्या चाहता है सेंटीमीटर। तो you multiply this with 100, the meters got turned into centimeter by multiplying by 100, and then per minute. So this guy is per hour, एक घंटे में इतना होता है। तो पर मिनट के लिए यू विल डिवाइड दिस बाय 60। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई आवर्स को मिनट में करने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज प्लीज। 3.6, 25 ones are 25 fours are this much centimeters is the growth in 1 hour. You are interested in finding out कितना है in 60 minutes. So you will just cross multiply in 60 minutes per minute, in 1 minute, sorry, not 60 minutes. So 1 hour means 60 minutes में इतना है, तो you will want to find out 1 मिनट में कितना होगा, तो then you do unitary method। ठीक है, पर आवर था, वो आवर्स को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो 3.6 into 4 is in 60 minutes, x is in 1 minute,
तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो 3.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60 आ रही है, विच इज़ वाई यू विल डिवाइड। ठीक है, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर।